Hello bachcho, let's read the question. The question says here, find the rate of heat flow through the cross section of the rod shown in the figure. Theta 2 is greater than theta 1. Thermal conductivity of the material of rod K is given to you here. And R1, R2 ये जो है यहाँ पे दो रेडियस दिया गया है R1 और इसका R2 दिया है. इस रॉड का लेंथ L है और थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इस पॉइंट का टेम्परेचर कम है. So can you find one R1 and R2 here? You are quadrilateral here. तो I am getting this quadrilateral here. तो मैं इस quadrilateral को अलग से एक बार ड्रॉ करता हूँ. ये जो ट्रेपेजियम शेप का quadrilateral है, इसमें हम एक triangular shape बना लेंगे. जैसे कि इसका नाम है R1 and this is R2. Let us consider any suitable distance, that is say for example R. यहाँ पे R डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx एरिया ले लेंगे हम x लेंथ पे, और इसको dx लेंथ कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ L दिया गया है. This is the radius R, or here R is the radius here. Let us name this triangle like PQRST. Okay. Now by similarity of triangle, आपको कौन से दो triangle similar देख ले, PQR and PST. Triangle PQR is similar with triangle PST. So by similarity, I can take the ratio of x by L. X by L is equal to R minus R1. X by L is equal to R minus R1 upon R2 minus R. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x into R2 minus R1 is equal to L into R minus R1. So अब मुझे रिलेशन चाहिए R का x के फॉर्म में और L के फॉर्म में. R is equal to R1 plus R2 minus R1 into x by L. ये इक्वेशन हमें आगे यूज करना है. तो बट इसमें R2 minus R1 by L जो है इसे हम ले लेंगे A. Let R2 minus R1 by L is equal to A. Now the equation is going to be changed as R is equal to R1 plus AX. So मेरा R का इक्वेशन A और X के फॉर्म में आया, और A what is A का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है R2 minus R1 by L. I will use these equations somewhere in the next steps. Okay. Now आपको यहाँ पे करना क्या है, dr जो है रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x by ka, दैट इज dx. स्मॉल लेंथ के लिए dx होगा और ka जो रहेगा आपका, ये फॉर्मूला है. इसे मुझे इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू r, 0 टू कैपिटल R, एंड लेंथ आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 टू L के फॉर्म में. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सो a की वैल्यू मैं लिख लूंगा पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे R1 plus AX. So I am getting the next equation as of now, like let us change the pen color here. Okay, now your equation will be in the form dr is equal to dx upon k pi r1 plus ax square. बिकॉज a की जगह पे मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा और r की जगह पे r1 plus ax लिख दिया. नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट दिस टू इक्वेशंस फ्रॉम suitable limit, that is 0 to r and from 0 to L. This is the integration. So 0 to r का integration हो जाएगा r is equal to 1 upon k pi is a constant, so I need to take it outside. 0 to L dx upon remaining thing is r1 plus ax the whole square. It is like 1 by t square. So let us suppose t is equal to r1 plus ax. Okay, यहाँ पे हमें dt is equal to हो जाएगा आपका a dx हो जाएगा, and dx is equal to dt by a we need to put here. यहाँ पे जो dx है वहाँ पे dt by a पुट करेंगे, और हमें लिमिट्स भी लेना होगा. जब आपका x is equal to 0 है तो आपका t is equal to r1 हो जाएगा, और x is equal to t है, सॉरी x is equal to जब l है तो t is equal to r1 plus al हो जाएगा. तो आपके यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज हो गए t के फॉर्म में. नाउ योर r is equal to 1 upon a k pi, फ्रॉम वेयर दिस a गेट dx को dt by a लिखना है, एंड आपके लिमिट्स जो चेंज हो जाएंगे r1 से लेके r1 plus al into dt upon the t square, and you know the integration for 1 upon t square is equal to minus 1 by t. so minus 1 by t को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, minus of 1 by a k pi into 1 by t. बट 1 by t के मेरे जो इंटीग्रेशन होगा 1 by t1 minus 1 by t2, that is 1 upon लिमिट्स जो पुट करेंगे 1 upon r1 plus al
1/r1 प्लस al माइनस 1/r1 जो हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 1/r1 प्लस al जो है आपका यहाँ पे r1 प्लस al, और a की वैल्यू हमने लास्ट टर्म में लिखा था कि a की वैल्यू जो है let us consider as a r2 minus r1 plus r2 minus r1 by l into आपका जो है l यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट इक्वेशन हो जाएगा आपका 1/a k पाई इंटू, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एल एल कैंसिल होगा, r1 कैंसिल हो जाएगा, r2 हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक 1/r2 माइनस 1/r1 माइनस रहेगा, बट इस माइनस को हटाने के लिए मैं 1/k a r1/r1 माइनस 1/r2। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ये थर्मल रेजिस्टेंस हम कहाँ पे पुट करेंगे, आपके Q के इक्वेशन में। तो जो आपका Q का इक्वेशन हो जाएगा, Q हीट फ्लो रेट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई R। तो हीट फ्लो रेट का आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अस चेंज द पेन कलर फर्स्ट। ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, आई कैन फाउंड हियर Q दैट इज डेल्टा थीटा बाई T। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, और T का वैल्यू मैंने सॉरी दिस इज नॉट T, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस R का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया है 1/a k पाई इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1/r1 इंटू r2। दिस r1 इंटू r2 आई कैन मेक टू द न्यूमरेटर हियर। सो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू r1/r2 इंटू k पाई, बिकॉज k पाई की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन l की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1/a, दिस इज 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, a का वैल्यू r2 माइनस r1 बाई l है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आएगा डिनोमिनेटर में बचा है r2 माइनस r1, सो 1/a का वैल्यू हो जाएगा l बाय r2 माइनस r1। सो r2 माइनस r1 इज गोइंग टू बी कैंसल, सिंस a का वैल्यू आपने पता था r2 माइनस r1 बाय l, सो 1/a का वैल्यू हो गया l बाय r2 माइनस r1। सो आई पुट इट हियर। नाउ q का वैल्यू जो हो जाएगा आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू r1 r2 k पाई, दिस इज द पाई अपॉन l। सो इसको अगर अच्छे से रीअरेंज करेंगे इट विल बी k पाई r1 r2 k पाई r1 r2 in the bracket theta 2 minus theta 1 upon l. This is the heat flow rate. Hope you understand it well. All the best.